Good morning, my hardworking aspirants. I hope the juice is still high to clear this exam and you're having a happy Sunday. This is the part 2 of yesterday's QnA based video. I could not finish answering all your questions as video was getting very long. But in this video, I will try to address all your questions as I am seeing a lot of new questions coming in on the part 1 of this video, and it's a good sign, which means you people are listening, and the more doubt you have, the more serious you are. Okay, with this, let's begin the video. But before that, I want to say something here. Many of you are messaging me, putting your questions personally in my social media accounts like Instagram and Facebook. I thought of starting this YouTube channel because since last 3 years, since I cleared the exam, I was getting a lot of such messages in my social media accounts. And on initial days, I tried answering all those questions, but with time, it was not possible for me, which is why I thought of having this channel. When you message me personally and when I answer you personally, the very idea and the whole idea and objective of starting this YouTube channel fails. Because when I answer you personally, then I want maximum aspirants to have the maximum benefit from my answer. So you see, the larger picture is something else. So it is a humble request to you all that obviously do follow me in my social media accounts. I will be very happy. But it is a humble request that please do not message me personally there about your queries related to this exam. Yes, if you want to tell me something personal, then that is something else. Obviously, I will see that. But anything related to this exam, kindly do comment in the down below in the video. I promise I will never leave a single comment without answering. I will answer with all my hearts out. So do not worry about that. Chalo, let's begin the main portion of the video. The first question, as you can see on the screen, how to deal with newspapers and current affairs. If you have seen the first part of the video regarding the first video where I was kind of introducing myself, you must have seen the pictures of newspapers where I was reading newspapers. But I was reading newspaper on my initial days. But I could not continue that because for me, I am a person who have a very less focus. Like I am very, always I'm in a rush. Like I am not a person who is calm and reading the newspapers. It was kind of getting boring for me. So I could not cope up with that, and I thought I looked out for the other option. Like then the idea came that because newspapers you cannot escape. It is a part of current affairs and you cannot escape. So then I went to the visual media. It was interesting for me, especially Rajya Sabha. I followed Rajya Sabha channel because I was just searching on YouTube where one of the candidate who cleared the UPSC exam, he was discussing about like there are some people who cannot keep their focus on reading newspapers. Then now we have the luxury of having visual phones with us. So I thought of doing that, and I followed only Rajya Sabha channel. Har subah ko aata tha, and I read newspaper hardly for 1 month. I don't think so, even 1 month. So after that, once I found Rajya Sabha, I never ever again read any kind of newspapers.
my friends were telling me that when we were preparing for mains, they were telling me कि अच्छा आर्टिकल आता है, various viewpoints और थोड़ा वैल्यू एडिशन हो जाएगा आंसर में, एंड यू शुड रीड न्यूज़पेपर्स ना. वहाँ पे एडिटर्स का अच्छा कोई करंट टॉपिक को लेके समटाइम्स दे अलग तरीका का व्यू डाल के वो लोग जो आर्टिकल को डालता था. सो वेन एवर आई फाउंड समथिंग लाइक दिस, जैसे कि कोई करंट अफेयर अभी करंट चल रहा है, तो राज्यसभा में दे विल जस्ट टेल यू द न्यूज़ इन ब्रीफ ना. तो व्हाट आई यूज टू डू, वहाँ से हम टॉपिक तो उठा लेते हैं दैट दिस वन इज इम्पोर्टेंट. तो वही टॉपिक को देन स्पेसिफिकली फॉर दैट टॉपिक हम न्यूज़पेपर में ढूंढता था कि इसमें क्या लिखा है आर्टिकल में एडिटर ना. एंड ऑल्सो इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन दैट जो विजुअल मीडिया होता है वो आपको आपका ब्रेन में वो याद रहता है ज़्यादा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ना जब व्हेन यू आर डीलिंग विद द प्रीलिम्स एंड मेंस इन एग्ज़ाम हॉल, वहाँ पे आपको लगेगा कि नो मतलब आपको कुछ याद नहीं है. द मोमेंट जो सुबह को होता है ना एग्ज़ाम, फॉर एग्जांपल आज प्रीलिम है, लास्ट मोमेंट तक आपको लगेगा व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द एग्ज़ाम रूम, आपको ये फील होगा कि हमको कुछ याद ही नहीं है, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग. लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में हमको ऐसा लगता है, एंड इट्स प्रूवन ऑल्सो, कि इंस्टेड ऑफ वो जो आपका न्यूज़ होता है न्यूज़पेपर ये सब में, इट डजन ज़्यादा नहीं रहता है वो माइंड में, बट विजुअल मीडिया है ना वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है, एंड इट हेल्प्स यू. And in the Rajya Sabha YouTube channel, they have the playlist for separate playlist for each topic. I mean, they have the I remember, if I'm not wrong now, कुछ चेंज भी हो गया होगा, लेकिन जो राज्य सभा का YouTube चैनल है वहाँ पे वो लोग ने हर सब्जेक्ट का एक अलग प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है. एंड दे ऑल्सो नो कि इन इंडिया लॉट ऑफ मैनी एस्पिरेंट्स फॉलोज राज्यसभा, और उनको पता भी है कि ये करंट अफेयर्स जो उनको काम आने जा रहे हैं. तो व्हाट दे डू कि उनको पता है कि व्यूवर्स आर फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ देयर व्यूवर्स आर फ्रॉम एस्पिरेंट्स. तो इसीलिए वो लोग ने ना दे आर वेरी स्मार्ट. इफ नहीं भी हो सकते, इट्स वो मैंने खुद ऐसा मुझे लगता है कि जानबूझ के वो लोग ने राज्यसभा चैनल ने प्लेलिस्ट बनाया है, ऐसे नाम दिया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक प्लेलिस्ट है उनके पास, देन वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक है उनके पास में अलग से प्लेलिस्ट ना, इंटरनेशनल रिलेशन ऐसा करके है. वहाँ पे यू गो देयर एंड उस जो स्पेसिफिकली जो प्लेलिस्ट है उसमें ना करंट अफेयर्स को वो लोग क्या करते हैं, सुबह का जो न्यूज़ आता है वहाँ पे तो जस्ट ब्रीफली दे टेल यू कि दिस आर गोइंग, कुछ 1 मिनट का दिखा देता है स्क्रीन पे. बट बाद में फिर क्या करते हैं, बाद में वो लोग जो एक लंबा सा वीडियो भी बनाते हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए, जहाँ पे वो जो आपका एडिटर्स लोग होता है और स्पेशलिस्ट लोग आता है, आके दे डिस्कस कि ये है, ये मेरा व्यू है, वो है, उसको इन डेप्थ में टॉपिक को डिस्कस करता है. और आप जब वो डिस्कशन सुनता है ना, वो लोग का पॉइंट्स को आपका जब आंसर लिख रहा होता है पूरा दिमाग में चलता है वो, एंड इट हेल्प्स यू अ लॉट फॉर ब्रिंगिंग आउट अ गुड क्वालिटी ऑफ आंसर. तो एक अच्छा क्वालिटी का आंसर बन जाता है विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ना. सो इसीलिए राज्यसभा पे आई टोटली डिपेंडेंट. अगर अलग कुछ ऑप्शन था बोलने से, आई वॉज डाउनलोडिंग द विजन IAS करंट अफेयर्स मंथली वन ना. तो दैट वाज स्पेशली फॉर प्रीलिम. वहाँ पे प्रीलिम आई यूज विजन IAS का वाला, एंड समवन वाज आस्किंग मी कि मैडम कितना पुराना तक का करंट अफेयर करना चाहिए. तो देयर इज दिस यहाँ पे एक वो होता है, आप बोलेगा टेक्निक. हाँ, वेन एवर यू आर स्टडिंग करंट अफेयर्स ना, हमेशा याद रखो कि करंट अफेयर्स आएगा बोल के नहीं है, करंट अफेयर्स से हमेशा स्टैटिक पोर्शन को आप लिंक करना है, उसके बाद में वो आपको प्रीलिम में आएगा, मिक्स करके आते हैं वो जो. तो वेन एवर देयर इज न्यू करंट अफेयर्स गोइंग ऑन विच सीम्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, हमेशा वापस स्टैटिक पोर्शन में जाके उससे रिलेटेड को कंप्लीट करना. Second question is, many of you wants me to share my answer sheets. आंसर शीट को शेयर करने के लिए क्या होता है कि आपको खुद से RTI करना पड़ता है, लाइक कमीशन को आप RTI करना पड़ता है कि आई वॉन्ट टू सी द क्वेश्चन पेपर बोल के ना, क्वेश्चन पेपर सॉरी
आंसर शीट को करके. Other can also do it, but for that commission will ask my permission, like they will email me or they will contact me कि आपको खुद का आंसर शीट को किसी के साथ शेयर करना है कि नहीं करना है बोल के. अभी तक तो ऐसा कोई रिक्वेस्ट आया नहीं है. आई थिंक नो वन हैव आस्क फॉर इट. एंड मेरा जो छोटा भाई है, माई यंगर ब्रदर, ही इज़ ऑल्सो सीरियसली प्रिपेयरिंग. तो फॉर हिम आई वॉज थिंकिंग कि आंसर शीट को खुद से RTI करके ले लेगा टू हेल्प हिम करके ना, उसका कुछ वो भी हो जाएगा करके. बट फॉर नाउ मेरा आंसर शीट मेरा पास भी नहीं है, खुद का पास भी नहीं है. तो समझ गया होगा, आई कैन नॉट शेयर माई आंसर शीट बिकॉज आई डू नॉट हैव. प्लस माई हैंड राइटिंग इज़ सो बैड दैट आई एम लाइक not really comfortable for the world out there to see it because बहुत गंदा हैंड राइटिंग है मेरा ना. और एग्ज़ाम में तो आई नो कि जो स्पीड से लिखना पड़ता है, ओ माई गॉड, इवन नाउ व्हेन आई थिंक मेरा पूरा आत्मा काँप जाता है. इट्स वेरी बहुत स्पीड में लिखना पड़ता है. उसके ऊपर में थॉट प्रोसेस भी जल्दी करना पड़ता है, तो टाइम भी टिकलिंग हो रहा होता है. तो जिसका ऑलरेडी हैंड राइटिंग इतना ख़राब है, तो आप सोच लो कि भगवान जाने कि मेरा राइटिंग तो कैसा होता होगा. फॉर ए फन फैक्ट, व्हेन आई यूज्ड टू डू मॉक टेस्ट सीरीज ना, जो होते हैं ना हम लोगों का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं कोचिंग में, तो वन ऑफ माई टीचर ही टोल्ड मी कि ही हैज़ नेवर सीन सच अ बैड हैंड राइटिंग. ही टोल्ड मी कि योर आंसर क्वालिटी इज़ सो गुड ना, आपका बहुत अलग अलग व्यू को ऐड करके यू ब्रिंग आउट अ वेरी बैलेंस्ड conclusion करके. So it's a very good quality of answer. But वो हैंड राइटिंग जो हमको बोलता था कि मुर्गी का पाव का हैंड राइटिंग जैसा है करके, so probably वो भी शायद अफेक्ट किया होगा मेरा in my final marking. I don't know, but not really comfortable sharing my answer sheet. But let's see in the future after clearing the prelim, we will see. The third question is how to practice answer writing. See, we are very lucky that we are preparing in a time where many coaching institutes are conducting such programs like mock test program for answer writing practice. You can enroll yourself in any of them. And remember, answer writing is one of the main part of the preparation. But I started answer writing practice after I cleared the prelim, because when you clear prelim na, the gap of conducting the mains is 3 months. Like it is a provision कि मेंस आने से पहले जो टाइम गैप है प्रीलिम और मेंस के बीच में, वो 3 months होता है. यू हैव टू रिमेंबर. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, December 15 को है प्रीलिम ना, तो December 15 को प्रीलिम है. इट टेक्स अराउंड 10 और 2 weeks में भी, कि जब रिजल्ट आउट होता है प्रीलिम का, जिस दिन रिजल्ट आउट होता है प्रीलिम का, वहाँ से लेके फ्रॉम ऑन दैट डे 3 months का गैप रहता है. आपको 3 months दिया जाता है मेंस का प्रैक्टिस के लिए. वो मेंस का प्रैक्टिस समय में मेंस का प्रिपरेशन के लिए. एंड आई न्यू दिस. सो उसी बीच में, आफ्टर द मोमेंट माई रिजल्ट केम फॉर prelim, I shifted to a PG होटल में, बिकॉज घर में थोड़ा वो आई हैव लॉट ऑफ डॉग्स एंड पेट लुक का थोड़ा रहता था, तो डिस्टर्बेंस होता था. फॉर दैट आई got myself admitted to a PG. वहाँ में आई स्टार्टेड रिमेंबर प्रीलिम का रिजल्ट का मे बी आफ्टर प्रोबेबली 3-4 days आई स्टार्टेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. वो 3 महीना का गैप में आई वॉज प्रैक्टिसिंग एवरी डे. एंड हाउ आई प्रैक्टिस्ड, आई enrolled myself in 3 coaching institute. I remember I was doing that. Besides, one of my coaching, I remember coaching institute, there was a teacher where I will be, he gives me question, 3-4 questions, and he says कि इतना 2 दिन में, आप 2 दिन में नहीं तो sometimes कभी कभी शाम को ही मांग लेता था. तो he will give me questions through WhatsApp, and वहाँ से फिर से हम आंसर राइटिंग जो हम खुद का बनाया वाला को, उसको हम वापस वो देता था.
तो उसमें तो क्वालिटी चेक हो रहा था फर्स्ट में कि आई एम अलाइनिंग द पॉइंट्स और नॉट, वो हो गया था. देन आफ्टर दैट ही मेड मी राइट आंसर्स टाइमर डाल के. तो वही में माय स्पीड इम्प्रूव हुआ, वहाँ पे हैंड राइटिंग का स्पीड इम्प्रूव हुआ. और गेम तो वही है कि कितना कम समय में आप कितना जल्दी सोच सकता है और वो सोच को आप आंसर में, पेपर में आप पुट कर सकते हैं, राइट ऑन कर सकते हैं. दैट इज द मेन गेम हियर. तो इट वॉज माई एक्सपीरियंस कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इनरोल योर सेल्फ इन मॉक टेस्ट. चार प्रोग्राम्स में आई इनरोल माई सेल्फ, आप सोच सकते हो. तो वो हो गया मेरा, वो तो हो ही रहा था. बट आई हैव सीन माई फ्रेंड्स हु वर प्रिपेयरिंग, वो लोग जो एक दूसरे के साथ में भी आंसर एक दूसरे को इवेलुएट करने देता था. बट आई नेवर डिड दैट. आई जस्ट रियलाइज कि थोड़ा पहले व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग आई सेड कि आई joined a hotel. I got myself into a hotel for study. It was not hotel, I meant hostel. तो आपने मत सोचना कि बा होटल इतना धनी होटल में कैसा बैठ. नो, इट वाज ए पीजी गर्ल्स हॉस्टल वेयर स्टूडेंट्स वेयर एस्पिरेंट्स वेयर देयर, जो हर डिफरेंट एग्जाम्स के लिए दे वर प्रिपेयरिंग, जहाँ पे थोड़ा घर में पढ़ाई का अगर माहौल नहीं है तो दैट इज़ वाई मैंने पीजी ज्वाइन किया. आई हैड ओनली 3 months लेफ्ट, तो वहाँ पे मुझे बेस्ट करना था, इसीलिए आई हैड टू लीव माई होम. तो वो है. तो डू नॉट थिंक इट वॉज अ होटल, आई मींट हॉस्टल. Next question is Notice Syllabus, how to cover notice portion, and you want me to suggest some names of the book to cover this portion. We all know that अभी ये नया एडिशन है syllabus में. When last time when we were appearing for the exam, it was not there. अरुणाचल और नोटिस मेंशन ही नहीं था syllabus में. It was 100% कॉपीड फ्रॉम यूपीएससी. सीधा वही फॉर्मेट को, सिलेबस को उठा के छाप दिया था हम लोग का समय में. बट दिस टाइम विद टाइम एंड मे बी इवेलुएशन उन लोगों ने डिसाइड किया कि ये होना चाहिए. एंड इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन, बिकॉज if you clear the exam and you become the officer, ये एक अरुणाचल कैडर का ही होगा. एंड योर होल लाइफ यू विल बी serving in Arunachal only. तो it is very important. And even the other candidates who comes from other states, like बहुत भी appear करता है, जैसे कि बिहार, हरियाणा, ये सबसे भी बहुत आके दे now appear for our states exam. तो कभी कभी it's my personal opinion that I feel कि it is very important कि अगर आप अरुणाचल में सर्व करने के लिए you are appearing for the exam, then you have to know the geography, the social setup of a state, कैसा रन करता है. because our state is very different. we are a tribal state. तो यहाँ पे चीज़ is very बहुत अलग है, बाहर की जैसा नहीं है. एंड यहाँ पे क्या होता है कि अभी जो नया सोसाइटी के लिए हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, लीगैलिटीज़ हो गया, ये रूल्स रेगुलेशंस, ये बहुत नया चीज़ है. आवर सोसाइटी इज़ इवॉल्विंग. अभी भी वी आर लाइक बहुत पीछे है ये सब चीज़ में. तो सोसाइटी इज़ इवॉल्विंग एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एनी ऑफिसर हु गोना सर्व इन आवर स्टेट, उनको जानना पड़ेगा कि कैसा है करके आवर सोशल सेटअप. सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस डिसीजन कि नोटिस का एडिशन हुआ है एंड स्पेसिफिकली अरुणाचल का ज़्यादा होगा. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू माई कॉमन सेंस आई फील कि लिखा तो नोटिस है, बट अब मैंने चेकआउट भी नहीं किया नया सिलेबस को. आई विल मेक आउट अ वीडियो स्पेसिफिकली ऑन दैट पार्ट. कल परसों आई थिंक आई विल सी कि क्या है करके. लेकिन भी फिर भी आपका थोड़ा फोकस जो अरुणाचल पे ज़्यादा होना है, बिकॉज लगता तो है कि ऑब्वियसली अरुणाचल से ही बोलने में नोटिस कर दिया, लेकिन 80% अरुणाचल से होगा क्वेश्चंस एंड 20% प्रोबेबली फ्रॉम द अदर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स. हैविंग सेड सो, जब आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द ओल्डर पैटर्न, वहाँ पे हम लोगों का था नोटिस पोर्शन, अरुणाचल का पोर्शन वहाँ पे था. तो इसलिए मुझे इसके बारे में है आइडिया. प्लस द सब्जेक्ट फ्रॉम वेयर आई कम फ्रॉम इज़ पॉलिटिकल साइंस. तो वहाँ पे मेरा ग्रेजुएशंस एंड मास्टर्स हुआ. तो उसमें क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स को हम लोग 3 लेवल में पढ़ता है. एक हम लोग इंटरनेशनल लेवल में पढ़ता है, देन इंडिया का लेवल में, देन इन आर 4 लेवल हो गया.
India, and then international India, then Northeast, then Arunachal Pradesh. ऐसा करके we studied our syllabus is like that in political science. जो भी political science में honors किया होगा उनको पता होगा कि what I am talking about. तो वहाँ से मेरा ऑलरेडी पुराना पैटर्न में व्हेन आई वाज गिविंग 2017 वाला एग्ज़ाम में, तो आई हैड दी, वो मेरा खुद का ही सब्जेक्ट है, तो वो आराम से कवर हो गया. लाइक आई सेड अर्लियर, अभी तक मैंने चेकआउट नहीं किया कि क्या एडिशन है एग्जैक्टली, बस सुना है एंड आई हैव रेड समवेयर इन सोशल मीडिया कि नया एडिशन हुआ है, नोटिस पार्ट है, देन आपका अरुणाचल का भी होगा. एटलीस्ट फॉर पॉलिटिक्स और दी होल सिस्टम को जानने के लिए आई वुड सजेस्ट कि those people whom you know who are doing masters or not exactly masters, graduation in political science, who are doing जो BA ऑनर्स कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो. एंड जो जिस चीज़ के लिए वो लोग पढ़ रहे हैं, नोटिस, वहाँ पे जितना भी सिलेबस है नोटिस का एंड अरुणाचल का, आप उनसे वो मांग सकते हो. और यू कैन आस्क द नेम ऑफ द बुक्स. एक कॉमन बुक्स बहुत अवेलेबल है मार्केट में, तो दे विल टेल यू. पॉलिटिकल साइंस आई थिंक BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये तीनों में आई थिंक है ये सिलेबस में ना. एंड आप मांग सकते हो, या यू कैन आस्क द नेम्स, और एल्स यू कैन गो टू द मार्केट. स्पेशली आई डोंट वांट टू नेम एनी शॉप हियर बिकॉज आई डोंट वांट टू. तो आप जो फेमस निर्जुली में है, ईटानगर में है, नाहरलगन में है, फेमस बुक्स लुक होता है, आई मीन फेमस बुक स्टोर्स लुक होता है, हु कीप्स द जो सिलेबस हम लोग का कॉलेजेस में एंड आरजू से जो अफिलेटेड कॉलेजेस है वहाँ पे जो सिलेबस है उससे रिलेटेड बुक्स वो को रखता है, सेमेस्टर 1, 2, 3 ऐसा करके. तो यू कैन डायरेक्टली गो टू वन ऑफ द फेमस बुक स्टोर एंड यू कैन आस्क कि भैया पॉलिटिकल साइंस से सब्जेक्ट में सेमेस्टर में जो भी बुक्स रिलेटेड टू नोटिस पोर्शन का है आप वो लेके रख लो उसके अंदर पे. बिकॉज ना वहाँ what you'll get, you'll read about पंचायत, how पंचायत started, और हिस्ट्री भी ऑल्सो की अरुणाचल में. वन थिंग, हिस्ट्री भी जो ऑनर्स कर रहे हैं ना हम लोग का स्टेट में, वहाँ में आरजू अफिलेटेड कॉलेजेस में हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में आपको ये कवर मिलेगा. तो आप अरुणाचल का हिस्ट्री, नोटिस का हिस्ट्री, वो कौन सा सेमेस्टर में है आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, वो भी आप मांग लो, वो भी जाके चेकआउट करो. लोकल ऑथर्स लुक ही होगा हम लोगों का अपना अरुणाचल का ना. डू चेकआउट एंड बाय ऑल दोस बुक्स, वो आपको मिल जाएगा. आई रिमेंबर reading a tiny small book, I think it was from Bani Lego or something, I'm not remembering exactly, बहुत पुराना हो गया अभी इसलिए. तो वो आप देख सकते हो, पंचायत का बारे पे होगा, अरुणाचल का हिस्ट्री, नेफा, हाउ इट इवॉल्व एज अ स्टेट, क्या पॉलिटिकल हिस्ट्री रहा है, पंचायत सिस्टम कैसा वर्क करता है. फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट सेइंग एग्जांपल की लेट यू अंडरस्टैंड कि अर्लियर हम लोगों का जो ये होता था पंचायत में 3 टायर सिस्टम होता था, अभी हम लोग का 2 टायर सिस्टम है. तो वहाँ से हम लोग ने अभी ZPM होता है, जिला परिषद मेंबर होता है, एंड आपका ग्राम सभा होता है. तो पहले अंचल भी होता था इफ़ यू रिमेंबर, तो अभी वो डिलीटेड है. तो कैसे ये काम करता है, हाउ एज ए सिस्टम फंक्शंस इन अरुणाचल, वो थोड़ा जानने के लिए कोशिश करो. देन फॉर नोटिस लाइक अदर स्टेट्स में प्रीलिम स्पेसिफिकली आई एम सेइंग कि क्या जब फेमस वाला क्या चीज़ के लिए फेमस है. एटलीस्ट नोटिस जीके तो यू विल गेट इन लॉट ऑफ बुक्स स्टोर, वो सब कुछ छाप दो फॉर प्रीलिम पोर्शन. एंड फॉर आंसर आई थिंक सिलेबस में जैसे हमारा थोड़ा डेप्थ में स्टडी करने के लिए यू बाय बुक्स, जो आरजू कॉलेज अफिलेटेड जो सिलेबस है, कोई भी फेमस बुक्स स्टोर से जाके आप वो खरीद लो. आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी ऑफ फॉर कवरिंग द नोट.